Okay. Let's recall a few things from the previous lecture. Um, okay, you guys tell me what was the previous lecture was all about. G. We studied the importance of fats and lipids in nutrition. Dietary fats. Very good. Okay. What type of fats we studied or discussed? Okay. What are the two main classes of fats? Saturated and unsaturated fats. और बाद में unsaturated आगे हाइड्रोजनेशन से ट्रांस फैटी एसिड्स बनते हैं. Okay, would you like to tell me among all the classes of fatty acids, which class is responsible to increase the LDL levels? Which class is believed? Okay, very good. Saturated. Okay, and what about unsaturated ones? Which one is in provides high calories, increased calories to the body? Okay, so you will have to have a check on the consumption of unsaturated fatty acids, right? What about trans fatty acids? Can you name any products which contain trans fatty acids? Are they good for the health or are they bad for the health? Margarine, very good. Bakery products, okay. G, okay, that's good. So one should limit the use of trans fatty acids in his or her diet. All right, let's come to towards the today's topic. That is the rest of the micronutrients, which include water, vitamins, and minerals. Okay, as we have already studied about all these topics in our previous lectures, but according to the nutrition point of view, we'll have a little review. Okay, Ji, let's start with the water. As we all know, it's considered to be the critical component of the body. It is responsible for the water and electrolyte balance. I mean, as we all know, there are different compartments of the body, which you studied in a water um, component of your syllabus. The cell function, any type of cell function, it depends on the fluid environment. I mean, we can also call it as whether the environment has optimal pH, the number of ions. For example, H ions are increased, so it is acidic environment. The H ions concentration decrease, it is basic environment. So, I mean, do you know the exact the average range of the normal pH level in your blood? जी नॉर्मल रेंज पीएच की कितनी होती है जो आपकी बॉडी के अंदर होती है, ब्लड के अंदर होती है? 7.4. ठीक है, ये एवरेज निकाल लिया आपने. अगर रेंज की बात करेंगे तो 7.35 से लेके 7.45 तक. ठीक है, सो वाटर का बड़ा रोल होता है इस पीएच को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर इफ यू टॉक अबाउट द होल बॉडी वेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल we talk about a person who is 70 kg weight, उसका 60-70% is comprised of water. ठीक है, so देखने में तो नहीं पता लग रहा होता आपको. अगर आप फिजिकली किसी को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पानी नजर नहीं आ रहा है सच, बट it's a constituent of every cell.
ठीक है. So 60 to 70% of your whole body weight is comprised of water. फिर एक और चीज का पता होना चाहिए कि when you compare the muscle with the fat, muscle contains more water in comparison to the fat because due to the fact कि muscle mass आपका ज्यादा होता है in comparison to the fat. ठीक है, हम average adult की बात करें, बहुत obese लोगों की बात नहीं कर रहे. Okay, next is the important point and there should be a little bit of understanding. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इन्फेंट्स जो होते हैं, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, दे हैव हाई टोटल बॉडी वाटर. ठीक है, क्यों? एनी रीजंस आती है समझ इस स्टेटमेंट की? जी, क्यों हाई टोटल बॉडी वाटर इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स क्यों होता है इन्फेंट्स का? हमने बात की ऊपर एडल्ट की, इसके अंदर ने बात की 60 से लेके 70% ऑफ द बॉडी वेट एडल्ट्स के अंदर इस कंपैरिजन ऑफ वाटर. हम इन्फेंट्स की बात कर रहे हैं. इन कंपैरिजन अगर हम इन्फेंट्स की बात करें तो इनके अंदर ये परसेंटेज इंक्रीज होती है. कार्टिलेजिनियस टिश्यू नहीं, कोई और बेटर रीजन? से 75% और 80% ऑफ द बॉडी वेट. मसल डोंट, हाँ आप करीब हैं इसके, मसल डोंट डेवलप प्रॉपरली, दे आर वल्नरेबल टू डिहाइड्रेशन. रीजन? वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, मगर इसकी रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है? इसकी भी रीजन के डिहाइड्रेशन होने का चांस ज्यादा होता है, और इसकी भी रीजन एक ही है, दैट जो स्टेटमेंट हमने लिखी है सामने कि इन्फेंट्स ऑफ हायर टोटल बॉडी वाटर, दे हैव गॉट अ लार्जर सरफेस एरिया. जी, अब किसी ने रिप्लाई किया, ओके, एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, वेरी गुड. ठीक है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इज द राइट टर्म. ठीक है, एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी आप इसको लिख सकते हैं. ये ज्यादा होती है, रीजन बीइंग उनका वेट कम होता है और उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है. ठीक है, जो कि एक ऐसी सिचुएशन के अंदर फॉल करते हैं फिर इन्फेंट्स के, देयर इज अ मोर चांस फॉर द वाटर लॉस थ्रू देयर स्किन. ठीक है, उनका वेट इतना ज्यादा नहीं होता इन कंपैरिजन टू अडल्ट्स, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से उनका वाटर कंटेंट भी ज्यादा होता है, एंड दे आर more vulnerable to dehydration. Fluid needs met by ingesting fluids and solid food. High in water content. Fruit की बात करें और ढेर सारे फ्रूट्स, मैंगो, ये जितने भी फ्रूट्स आपको आते हैं इसके अंदर काफी नीड्स को पूरा कर सकता है along with the drinking water. ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट वाटर. ये इंपॉर्टेंस है इसकी, अगर आपसे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको इसी तरह लिख देने. ठीक है, एंड यू बी डन. हाँ, मोर स्पेसिफिक क्वेश्चंस अगर आपको वाटर जो आपका अलग से एक टॉपिक है वाटर पीएच का, अगर उससे रिलेटेड कोई कंपार्टमेंट्स पूछे जाते हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर ये नहीं लिखना. उसके अंदर आप डिफरेंट कंपार्टमेंट्स के बारे में बताएंगे जो बॉडी फ्लूइड आपका है. ठीक है, कितने कंपार्टमेंट्स में होता है वो, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, ईसीएफ, ठीक है, वो सारा कुछ. और अगर वाटर से रिलेटेड कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस पूछी जाती हैं, कोई और वैन डर वाल फोर्सेस पूछी जाती हैं, इस तरह की चीजें वाटर से रिलेटेड पूछी जाती हैं, डेफिनेटली दैट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन. वो आपने वाटर पीएच वाले टॉपिक के साथ कवर करना है जो आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो. हाँ, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर न्यूट्रिशन का वर्ड या न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, या एज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी या उसकी फंक्शनैलिटी, तो फिर इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको फाइनल एग्जाम के अंदर आता है तो फिर आपने उसके अंदर ये 3, 4, 5 पॉइंट्स मेंशन कर देने. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू विटामिन्स. ओके जी, लेट्स रिवाइज फ्यू ऑफ द विटामिन्स. कौन सी ब्रॉड मेजर क्लासेस क्या हैं, कौन से 2 तरह के विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को जरूरत पड़ती है? जी, आई थिंक आप एक जीटी दे चुके हैं. ओके, ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स के अंदर बी कॉम्प्लेक्स आ जाता है जिसके अंदर 8 विटामिन्स होते हैं. विटामिन B1, थायमिन, विटामिन B2, रिबोफ्लेविन 3, नायासिन,
5 pantothenic acid, 6 pyridoxine, 7 biotin, 9 folic acid and 12 is cobalamin. ठीक है, और इसके साथ साथ विटामिन सी. सो बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी आर water soluble vitamins. In comparison, if you talk about fat soluble vitamins, there are 4 of them: A, D, E, K, vitamin A, vitamin D, vitamin K and vitamin E. Okay, जी बिल्कुल ठीक है, A, D, E, K. Okay, इनके मोटे मोटे फंक्शंस आप बहुत डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, मगर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से फिर दोबारा से आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. आपको आंसर करना आना चाहिए कि किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूट्रिशनल पॉइंट से या फिर वैसे उसकी कोई आरडीएज या इस तरह की चीजें पूछ रहा है या उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर रहा है. ठीक है, सो ही कैन आस्क यू एनीथिंग बिकॉज दिस थिंग इज इंक्लूडेड इन न्यूट्रिशन एज वेल एज अ सेपरेट एंटिटी. विटामिन अलग से एक पूरा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट है. इसी वजह से आप अगर अपना यूएचएस का सिलेबस निकालोगे उसके अंदर विटामिन के काफी ढेर सारे, आई थिंक प्रोबेबली 6 ऐसे एमसीक्यूज आते हैं और 1.5 या 1 एससीक्यू है. ठीक है, तो मिनरल्स के साथ मिला के तकरीबन समझ लो आपके अगर 9 क्वेश्चंस आने हैं उनमें से 2 वाटर या मिनरल्स और विटामिन के साथ के अंदर से ही आ जाने. ठीक है, तो विटामिन जाहिर है न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकता है और वैसे भी पूछ सकता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन. ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद ब्रॉडर, उस पे करते हैं, इसको समराइज करते हैं चीजों को. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट जनरली कि अगर आपको एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एज अ न्यूट्रिशन को आपको साथ लेके चलना पड़ता है. ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम पहले भी बात करते आए हैं. सो दवाई लिखना इज नॉट मेडिसिन. ठीक है, या डॉक्टरी जिसको आप बोलते हैं वो सिर्फ दवाई लिख के नहीं पूरी हो जाती है, आपको उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी पूरे करने पड़ते हैं. सही है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सीइंग एनी पेशेंट जिसके अंदर आपको लगता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसके ब्लड एग्जाम्स के से आप उसको देखते हो या आप उसके अंदर असेसमेंट करते हो या कुछ ऐसी डिजीज है जो जिसकी कॉज ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, तो it would be a good idea to include vitamin E or C, which are considered to be good antioxidants. ठीक है, in various reactions आपके जो free oxygen radicals होते हैं उनको कंट्रोल में रखते हैं. ठीक है, आपकी जो ऑक्सीजन स्पीशीज हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जिनको ROS कहा जाता है, ठीक है, उनको बनने से रोकते हैं या जो बन गई होती है उनको स्टेबलाइज करते हैं. ठीक है, उनको डैमेज को रिड्यूस करते हैं. सो विटामिन सी और ई का नाम आप लेंगे अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पे विटामिन को यूज करना चाहते हैं. देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स व्हिच आर यूज्ड इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस एज कोएंजाइम्स, जिसके अंदर आपके 8 बी विटामिन्स आ जाते हैं. ठीक है, B1, B2, B3, B5, B7, 9 एंड 12. ठीक है, हो गया. ओके, अगर हम बोन हेल्थ की बात करें तो वी ऑल नो, हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है. विटामिन डी तो सबसे पहले आता है, इसके साथ साथ विटामिन के भी आता है और किसी हद तक विटामिन ए भी इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं. ठीक है, क्यों, उसकी रीजन क्या है, विटामिन ए क्यों आप बोन हेल्थ के अंदर बात करते हैं. जी पढ़ा हुआ है आपने, विटामिन ए टेस्ट भी है आपका अभी मंडे को. जी, विटामिन ए का क्या रोल होता है बोन्स के अंदर. डी और की का तो बड़ा रिनाउंड किस्म का इफेक्ट है ना, कैल्शियम को मिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन, ये वो. के का भी इसी तरह. बट व्हाट अबाउट विटामिन ए, बोन प्रोडक्शन वेरी गुड. ठीक है, दे आर स्पेसिफिक सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट्स. ठीक है, हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट की प्रोडक्शन को एनहांस करता है, उसकी सिंथेसिस को बढ़ाता है विटामिन ए. इस वजह से इनडायरेक्टली बोन हेल्थ के अंदर विटामिन ए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है जी. देन विजन की अगर हम बात करें तो विटामिन ए, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद द विजन. वो हमने रेटिनॉल और रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड, ये सारा हमने चीजें पढ़ी थी डिटेल के अंदर. ठीक है, हमने पूरा साइकिल भी पढ़ा था, विजुअल साइकिल भी पढ़ा था. ठीक है, सो विजन की अगर बात करेंगे तो विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज विजन इज कंसर्न. और अगर हम अकेली ब्लड क्लॉटिंग की बात करें, कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं. जी मैंने आपको पढ़ाया था जब उस टाइम पे, मैंने आपको कहा था इनको भूलना नहीं है. जी
आई टेक अ स्टार्ट टू आगे 2 7 9 10 वेरी गुड वेरी गुड 2 7 9 10 जी 10 भी मिस अहमद आपने 10 भी मिस किया हाँ 2 7 9 10 ठीक है इनको नहीं भूलना आपने सही है विटामिन के की जब भी बात आएगी तो इन फैक्टर्स को आप जरूर मेंशन करेंगे जो कि हेल्पफुल होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग ठीक है ओके जी अगेन क्लासिफिकेशन थोड़ी सी नजर मार लेते हैं कि जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स उनके ऊपर नजर मार लेते हैं ये सारा कुछ आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है अब न्यूट्रिशन में फिर थोड़ा सा दोबारा से समझ लो रिवाइज भी हो रहा है और इसका पार्ट भी है ओके फैट सॉल्युबल वर्सेस वाटर सॉल्युबल पूछा जा सकता है बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर्स का आपको सीधा सीधा खसूसियात इनकी पता होनी चाहिए फैट सॉल्युबल की बात करेंगे सबसे पहले उनके नाम मेंशन कर देंगे फर्स्ट पॉइंट में फिर आप कंपैरिजन के अंदर बात कर सकते हैं एज फार एज देयर एब्जॉर्प्शन इज कंसर्न्ड स्टोरेज इज कंसर्न्ड और कुकिंग लॉसेस वगैरह ठीक है ये दो तीन मोटे मोटे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए फैट सॉल्युबल को फैट सॉल्युबल इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर एब्जॉर्ब लाइक फैट दे आर स्टोर्ड इन प्लेसेस जहां जाके आपका फैट स्टोर होता है ठीक है और एब्जॉर्प्शन कैसे होती है जब इनटेक होती है आप इनटेक करते हो उनकी इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्ब होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एंटर होते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वो ब्लड स्ट्रीम में एंट्रेंस लेते हैं और एंट्रेंस करके लिवर तक जाते हैं ओके दे कैन बी स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज आपका फैट कंटेंट है आपकी बॉडी के अंदर ठीक है जहां वो स्टोर होगा उसके साथ जाके फैट सॉल्युबल विटामिन भी स्टोर हो जाते हैं इतने ज्यादा वल्नरेबल नहीं होते कुकिंग लॉसेस फैट स्ट्रीम के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं इनके अंदर कोई लिम्फेटिक सिस्टम की जरूरत नहीं होती कोई फैट ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं चाहिए होता ठीक है इंडिपेंडेंटली एब्जॉर्ब होते हैं एंड स्टोर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स ठीक है कम जितनी जरूरत होती है बॉडी को उसके लिए हाथ से ये उसके अंदर स्टोर्ड होंगे आपकी बॉडी के अंदर फॉर द शॉर्ट टाइम ठीक है इसी वजह से इनकी बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते टॉक्सिसिटी होने के अनलेस किसी ने बहुत ज्यादा इंजेस्ट ऑल ऑफ अ सडन कर ली है ठीक है अनलाइक फैट सॉल्युबल विटामिन्स जिनकी टॉक्सिसिटी सिवियर हो सकती है एक एमसीक्यू हो सकता है आपको एक क्या आई मीन कुछ एमसीक्यूज या एससीक्यूज इस तरह के आ जाए पेपर में जिसमें आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि मोस्ट टॉक्सिक कौन सा है लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है तो इसको सर्च करके आना बुक को पढ़ के आना ठीक है इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे ठीक है क्योंकि आपको ये अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए होंगे आपने बुक के अंदर फिर ही पकड़ पाओगे ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट करना ठीक है जो भी अब एग्जाम आपका आ रहा है ओके and they are vulnerable to cooking losses. Water soluble जो होते हैं in comparison to fat soluble, they are more vulnerable to cooking losses. जब भी cooking वगैरह होगी तो water soluble vitamins के structure disrupt होने के ज़्यादा chances हैं, ठीक है, in comparison to fat soluble. Okay जी, functions of fat soluble vitamins. Again, हमने पहले diagrammatically किया था, हम उसको theory देख लेते हैं थोड़ी सी. विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी फंक्शंस इन योर बॉडी फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विद विजन एपिथेलियल टिश्यू इन शॉर्ट अगर इजी वर्ड्स में बोलना है तो स्किन की हेल्थ बड़ी डिपेंडेंट होती है विटामिन ए देन कम्स प्रॉपर बोन ग्रोथ जो हमने पहले बात की थी बोन फॉर्मेशन का काम करता है विद द हेल्प ऑफ बोन फॉर्मिंग सेल्स व्हिच आर कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट एनर्जी रेगुलेशन भी किसी हद तक करता है विटामिन डी की बात करें इट प्रमोट्स नॉर्मल बोन मिनरलाइजेशन कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है काफी ज्यादा टाइम लगा के अगर कोई बच्चा इसको ना प्रोड्यूस कर पाया ठीक है तो आई विल फील के वी वेस्टेड द टाइम ठीक है क्योंकि उसको हमने काफी मुझे याद पड़ता है हमने 2 लेक्चर लगा के इसको विटामिन डी और ये सारे वो डायग्राम भी दिखाई थी आपको काफी डिटेल में कराया था कैल्शियम की रेगुलेशन और पैराथायराइड और ये सारा कुछ ये आपने पढ़ के आना तो इट विल बी आस्क्ड इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस अमंग विटामिन्स फैट सॉल्युबल ठीक है तो आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट रोल्स they are well renowned after so many years of research all over the world protects vitamin A and unsaturated fatty acids from the विटामिन के की बात करें ब्लड क्लॉटिंग के अंदर और बोन मेटाबॉलिज्म के अंदर भी इसका कुछ ना कुछ रोल होता है
सही है, ये मोटे मोटे फंक्शंस हो गए फैट सॉल्युबल विटामिन्स के। फंक्शंस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है, इसको हम ब्रॉड क्लासेस के अंदर कर लेते हैं डिवाइड। विटामिन सी की बात करें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी थिंग्स। अगेन कोलेजन सिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एड्रिनल ग्लैंड फंक्शन को एनहांस करता है, या अपनी अप्रोप्रिएट अमाउंट्स के अंदर एड्रिनल ग्लैंड अपनी प्रॉपर सिक्रीशन करे अपने हार्मोन्स की, दैट इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, that is very much dependent on vitamin C, or in other words vitamin C is responsible for the proper adrenal gland function. फिर आपको एक बड़ा क्लिनिकल पर्ल बताया था जब हम आयरन पढ़ रहे थे और जब हम विटामिन सी पढ़ रहे थे, ठीक है, दे हैव गॉट अ क्लोज एसोसिएशन। कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसका डायग्नोज हो जाता है, आप उसको आयरन सप्लीमेंटेशन देते हैं, ओरल टैबलेट्स देते हैं आयरन सल्फेट की, ठीक है, और खाने के लिए कुछ टाइम के लिए, ताकि उसका आयरन लेवल दोबारा नॉर्मल वापस आ जाए, और उसको आप डाइट भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसी बताते हैं डाइट के जिसके अंदर आयरन कंटेनिंग फूड्स उसमें ज्यादा इस्तेमाल कर लें। आप एट द सेम टाइम उसकी अब्जॉर्प्शन को एनहांस करने के लिए विटामिन सी भी दे देते हैं, बिकॉज विटामिन सी जब आप उसके साथ को एडमिनिस्टर करते हो ऐसे पेशेंट को जिसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी नहीं है या आयरन की डेफिशिएंसी है, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को 2 फोल्ड इंक्रीज बूस्ट करता है, ठीक है, वो एनहांस करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को। आयरन जाया नहीं होता, जो डाइट में या सप्लीमेंट्स में आप ले रहे होते हो उसमें से मैक्सिमम पोर्शन विद द हेल्प ऑफ विटामिन सी इट गेट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन द ब्लड। फॉलिक एसिड की कन्वर्जन, ठीक है, जब आप उसके अंदर जो कुछ किसी जगह के ऊपर को फैक्टर है, कोएंजाइम का काम भी करता है। ओके, बी कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, वेरियस कोएंजाइम्स इन वेरियस रिएक्शंस, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स से आपको मिलते हैं, जिसके अंदर NADH भी हमने पढ़ा था, हमने FADH भी पढ़ा था, ठीक है, FAD और ये सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है, उसके अंदर बायोटिन का बड़ा रोल पढ़ा था हमने, ठीक है, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स, डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर डिफरेंट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट विटामिन यूज होते हैं। ओके जी, एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमने पहले डिफाइन किया, विटामिन सी और ई की बात की, ठीक है, विटामिन सी, ई एंड बीटा कैरोटीन, इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी हैं जिसके अंदर सेलेनियम आ जाता है, फिर कैरोटीनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स, ऑल दीज विटामिन्स आर कंसिडर्ड एज टू सर्व एज एंटीऑक्सीडेंट्स। फ्री रेडिकल्स डिटेल में पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, पहले अब लिपिड केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, उसके बाद इधर भी मैंने बताया था आपको, ठीक है, they can result from a normal metabolism. ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हैं, आपकी बॉडी में सर्कुलेशन में आपके डिफरेंट सेल्स में टिश्यूज में ऑक्सीजन इज रेडिली अवेलेबल, ठीक है। जब भी कोई ऐसा टॉक्सिक केमिकल उसके साथ आके रिएक्ट करता है ड्यू टू एज अ रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन, स्मोकिंग, रेडिएशन या स्ट्रेस, ठीक है, तो फिर क्या होता है, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, मतलब ऑक्सीजन ने किसी भी इस तरह के हार्मफुल केमिकल के साथ रिएक्ट किया और एक खास किस्म की स्पीशीज बना दी जिसके अंदर सुपर ऑक्साइड्स आ जाते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आ जाती है, ठीक है, इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं दे बिकम हार्मफुल फॉर द वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज इन योर बॉडी, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, ये जिनकी बात की हमने, विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम ऑल दोज फ्री रेडिकल्स, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सेल डैमेज और टिश्यूज, ठीक है। इसी वजह से इनको डाइट में इनकॉर्पोरेट करना बड़ा ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अननोइंगली आपको नहीं पता वॉट एवर यू आर इनहेलिंग उसके अंदर कितने हार्मफुल केमिकल्स पॉल्यूटेंट्स हैं आपकी एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। जो कुछ खाना आप यूटिलाइज कर रहे हैं उसके अंदर क्या कुछ आप देखने में तो नहीं पता लग रहा होता या इनहेल करने में तो नहीं आपको फील हो रहा होता, बट यू आर इनहेलिंग एंड इंजेस्टिंग सो मेनी हार्मफुल केमिकल्स जो कि अंदर जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बना सकते हैं। और वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जाहिर है वो नॉर्मल तो नहीं है, ठीक है, नॉर्मली बननी चाहिए एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, मगर वो जब एक्सेस में जाएंगी तो वो डैमेजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे आपके सेल्स और टिश्यूज को। सो इस वजह से जो लोग विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन, सेलेनियम, कैरोटीनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स नहीं कंज्यूम करते अपनी डाइट के अंदर, या उनकी बॉडी डेफिशिएंट रह जाती है इन विटामिन से, दे आर मोर प्रोन बाय द अटैक ऑफ
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, ठीक है, उनके अंदर स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो सकता है, मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, एंड दैट कैन लीड टू सो मेनी डिजीजेस। रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के, बेसिकली इनिशिएशन होता है, प्रोपिगेशन होता है, टर्मिनेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर ये वाले जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो विटामिन मिनरल्स की बात करें, ये इन रिएक्शंस को रोक देते हैं, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देते, और जो डैमेज आगे चल के होना होता है वो सारा का सारा रुक जाता है, उसको उसके अंदर इंटरप्शन आ जाती है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। विटामिन ए की थोड़ी सी बात कर लें। डाइटरी सोर्सेज क्या होती हैं इसकी? फिश, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फंक्शंस की बात कर लें तो इंपॉर्टेंट है आईज, हेयर, इम्यून सिस्टम, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है। केराटोमलेशिया एक टर्म है जो इस तरह की दिखती है, विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस का आपको पता है, ठीक है। ओके जी, रोल ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी। विजन की बात करें, कॉर्निया, रेटिना, रोडोप्सिन, ऑप्सिन, रेटिनाल, ये विजुअल साइकिल में आप बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, वो जो इंटरकन्वर्जन है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन, इट मेंटेन्स द हेल्दी सेल्स इन म्यूकस मेम्ब्रेन्स। जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन्स की लाइनिंग्स हैं उनके अंदर उनको मेंटेनेंस का काम करते हैं, उसके अंदर हेल्दी सेल्स की प्रोविजन, उसकी सिंथेसिस, उसकी मेंटेनेंस, ये सब कुछ डिपेंडेंट होता है विटामिन ए के ऊपर, ठीक है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स would not be able to maintain the healthy cells, ठीक है। Then comes reproduction and growth। हमने एक चार्ट पढ़ा था विटामिन ए का, जो अभी आप probably over the weekend दोबारा पढ़ोगे because it is included in your upcoming GT। वो जरूर पढ़ के आना, वो जो एक लिपनकॉट का चार्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर उसने सारी बातें बताई हुई है कि चार्ट के अंदर जो डायग्राम सी बनी हुई है, ठीक है। स्पर्म डेवलपमेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए विटामिन ए इज इन्वॉल्व। विटामिन ई भी कंसिडर किया जाता है, वो बेसिकली वो एंटीऑक्सीडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पर्म डेवलपमेंट की बात करें तो विटामिन ए प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्म डेवलपमेंट। जिन लोगों को स्पर्म एजोस्पर्मिया या ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया तो खैर बहुत सिवियर कंडीशन है, अगर ओलिगोस्पर्मिया हुआ है, लो स्पर्म काउंट है, ठीक है, तो उसके अंदर विटामिन ए इज रिकमेंडेड। और फीटल डेवलपमेंट का भी काम करता है, ठीक है। विटामिन ए नॉर्मल फीटल डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले करता है। अगर विटामिन ए डेफिशिएंट मदर है तो उसके बेबी के अंदर कुछ फीटल नॉर्मलीज आ सकती हैं। विटामिन बी 12 की बात करें, डाइटरी सोर्सेज, ये हम सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। चीज, रेड मीट, होल ग्रेन्स। फंक्शंस क्या होते हैं? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है और रेड ब्लड सेल्स को। नर्वस सिस्टम के अंदर पैरेस्थीसियास कर सकता है, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर सकता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। चलो यहाँ मुझे अब आपने बताना है, रिवाइज करते हैं चीजों को। एनीमिया को कैसे क्लासिफाई करते हैं जी? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ आरबीसी। हाउ वुड यू क्लासिफाई एनीमिया? कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं जी? विटामिन बी 12 जी, उससे अगर आप कहेंगे तो मैक्रोसिटिक, वेरी गुड। और अगर जी माइक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक भी तो पढ़ा था, एक नॉर्मोसिटिक की भी तो टर्म पढ़ी थी आपने जी, जिसमें साइज नॉर्मल होता है, साइज रिड्यूस नहीं होता, मगर ओवरऑल आरबीसी कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है, दैट इज नॉर्मोसिटिक। एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एक खास वैल्यू से नीचे जाएगा तो माइक्रोसिटिक कहेंगे, एक खास नॉर्मल रेंज से ऊपर जाएगा तो मैक्रोसिटिक कहेंगे। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट विटामिन बी 12, तो बी 12 में कौन सा होता है जी? हाँ, डिफरेंशिएशन मुझे करके बता सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विटामिन बी 12 डेफिशिएंट डाइट लीडिंग टू अनीमिया, मैक्रोसिटिक और पर्निशियस अनीमिया जी? कोई शख्स डाइट के अंदर विटामिन बी 12 नहीं लेता और विटामिन बी 12 नहीं उसकी बॉडी में एंटर होता, वो डेफिशिएंट हो जाता है। और किसी शख्स को पर्निशियस अनीमिया, व्हाट इज द डिफरेंस?
जी, इतनी जल्दी भूल गए हो? इसको तो जीटी भी आई थिंक दे दिया हुआ आपने। जी, इंट्रिंसिक फैक्टर याद है आपको? जी जी जी, हियर यू गो। डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, जितना मर्जी विटामिन बी 12 खा लें, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, उसकी एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। जितना खाएंगे उतना निकाल देंगे रोजमर्रा की बेसिस पे। दैट इज पर्निशियस एनीमिया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ होता है? स्टमक के अंदर। ठीक है, जब उसका एग्जिट हो रहा होता है विटामिन बी 12 का स्टमक से टुवर्ड्स द इंटेस्टाइन, तो उसके साथ बाइंड कर जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है म्यूकोजल सेल की लाइनिंग के ऊपर। वहां जाके रिसेप्टर से बाइंड करता है और उसकी वहां से एग्जिट करवाता है उसको। ठीक है, सो दिस इज द रोल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर वो डेफिशिएंट हो जाए तो आप उसको बोलेंगे पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, और किसी का इंट्रिंसिक फैक्टर ठीक है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, उसकी डाइट के अंदर नहीं आ रहा, आप डाइट ऐसी कंज्यूम नहीं कर रहा जिसके अंदर विटामिन बी 12 बहुत ज्यादा हो, फिर उसको कहेंगे विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी एनीमिया। ठीक है, बोथ विल बी ऑफ मेगालोब्लास्टिक नेचर। जी, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से भी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इनफैक्ट दीज आर द टू कॉजेज जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी इन द बॉडी, इन द ब्लड, एंड द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12 कोबालामीन। ठीक है, विटामिन डी की बात करते हैं। ये पिक्चर के अंदर आपको ये नॉर्मल सिमेट्री में लेग्स लग रही हैं इस बच्चे की, या ये थोड़ा सा नॉर्मल पैटर्न नहीं है? ये नॉर्मल फिजिक लग रही है आपको? व्हाट इज इट? व्हाट इट कुड बी? हो सकता है इसको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो। ऐसी कंडीशन को क्या करते हैं, कहते हैं? वेरी गुड, रिकेट्स। ठीक है, बोइंग ऑफ द लेग्स। जी, और अगर एडल्ट्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या कहते हैं उसको? ऑस्टियोमलेशिया। वेरी गुड। ठीक है, इसका ना कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके जी, डाइटरी सोर्सेज, dairy products and fish are considered to be very good sources for vitamin D. ठीक है, functions, bones development, kidneys के अंदर, nervous system and skin। ठीक है, ये सारे के सारे जगहों के ऊपर ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसकी कन्वर्जन आपको आनी चाहिए अपकमिंग जीटी के लिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपकी स्किन के अंदर कौन सी फॉर्म है। जब यूवी लाइट आपके ऊपर, सनलाइट जब पड़ती है तो क्या होता है आपकी बॉडी के अंदर? फिर जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो लिवर में जाता है, वहां उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है। कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कौन सा एंजाइम यूज होता है? फिर लिवर से निकल के वो किडनी में जाता है और फाइनल उसकी एक्टिव फॉर्म बनती है कैल्सिट्रायोल। और उसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है, ये इसका बहुत सही तरह से पता होना चाहिए, इसको नहीं भूलना आपने। ठीक है, एमसीक्यूज इससे मिलते जुलते आएंगे। ठीक है, सिर्फ लिवर मेंशन किया जा सकता है, सिर्फ किडनी मेंशन की जा सकती है। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी मेटाबॉलिज्म की बात करें, किडनी में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कौन सी फॉर्म बन रही है। स्किन की बात करें, यूवी लाइट पड़ती है उसके ऊपर, स्किन के ऊपर, तो वहां विटामिन डी की जो इनिशियल फॉर्म तैयार होती है वो क्या होती है। उसके बाद लिवर के अंदर फिर आपको पता होना चाहिए कितनी दफा हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है, फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, लास्ट हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट बना के आना है। ठीक है, एक डायग्राम बड़ी अच्छी लिपिन कॉर्ट में बनी हुई है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के आना है, उससे काफी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको। ठीक है, सो इन इन चिल्ड्रन अगर हम बात करें तो इट्स रिकेट्स, और अगर हम एडल्ट्स की बात करें, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कैन लीड टू ऑस्टियोमलेशिया। जी,
ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू विटामिन ई। डाइटरी सोर्सेज की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स, ऑयल्स, होल ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, जितने भी नट्स खाते हैं आप, कैश्यू नट्स हो गया, ठीक है, आलमंड्स हो गए, और चीजें हो गई, ठीक है, जितने भी नट्स की कैटेगरी में आती हैं चीजें, ठीक है, उनके अंदर विटामिन ई इज फाउंड इन अबंडेंस। ऑयल्स जो यूज करते हैं, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, ठीक है, एबीसी, और जितने भी ऑयल्स हैं, जो भी ऑयल्स हैं, उनके अंदर काफी मिकदार में विटामिन ए पाया जाता है, होल ग्रेन्स के अंदर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। फंक्शंस अगर देखें तो इट कैन अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लंग्स, नर्व्स एंड स्किन। ठीक है, ये चीफ ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के, जिनके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है विटामिन ई। लेट्स मूव ऑन टू विटामिन के। डाइटरी सोर्सेज, मोटी मोटी डाइटरी सोर्सेज कौन कौन सी हैं? वीट में पाया जाता है, बीन्स में पाया जाता है, वेजिटेबल्स के अंदर बड़ा ज्यादा होता है, और एग योक के अंदर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, दो चीजें याद है हमने पढ़ी थी जो कि बहुत कॉमन होती हैं, जो हमने बात की थी कि रोजमर्रा में अगर आप डाइट में कंज्यूम करो तो आपको काफी फायदे हो सकते हैं। एक तो लीफी वेजिटेबल्स, जिसके अंदर हर दूसरा विटामिन मौजूद है, और काफी मिनरल्स भी आ जाते हैं साथ, डिपेंडिंग ऑन कौन सी जगह के ऊपर वो प्लांट उगा हुआ है। ठीक है, वो जो आपकी सॉइल होती है, काफी प्लांट्स वो भी उस पर भी डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, और विटामिन तो खैर लीफी वेजिटेबल्स में होते ही होते हैं, और साथ एग रोजाना का। ठीक है, एक अंडा खाना जो है ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, अनलेस यू हैव इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ओके जी, देन यू रिमूव दैट येलो पार्ट। ठीक है, और वाइट पार्ट आप खाते हैं जो प्रोटीन होती है ज्यादा। ओके जी, फंक्शंस, कोएगुलेशन, मेटाबॉलिज्म्स, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स के अंदर विटामिन के का रोल है, एंड लिवर फंक्शन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक क्लिनिकल पर्ल बताता हूँ आपको। अक्सर लोगों को ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं, ज्यादा ब्लीड करते हैं वो, ठीक है, उसके अंदर विटामिन के भी एज अ ड्रग दिया जाता है टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ठीक है, फिर हमने वारफ्रीन के साथ एनल बात की थी। ठीक है, क्या क्या रिलेशनशिप है इसका वारफ्रीन के साथ? वारफ्रीन इज अ ब्लड थिनर जो कि दिया जाता है हार्ट पेशेंट्स को टू थिन द ब्लड। ऐसे लोगों को कई दफा बहुत ज्यादा हल्का सा कट लगे, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो उसका एंटीडोट फिर आप विटामिन के देते हैं। ठीक है, ये भी एक यूज है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है जो आपको आगे चल के काम आएगा। ओके जी, let's have a look on minerals. These are inorganic elements essential to the body as catalysts in various biochemical reactions. अब ब्रॉड क्लासिफिकेशन आप मुझे बताएंगे, एग्जाम भी आपका आ रहा है, अच्छा रिवीजन भी हो जाएगी साथ साथ थोड़ी सी। मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स में क्या फर्क होता है जी? हाउ वुड यू डिफाइन मैक्रो मिनरल्स एंड हाउ वुड यू डिफाइन माइक्रो मिनरल्स? एक नंबर है, एक एक वैल्यू है, एक नंबर है, जिससे नीचे नीचे अगर रिक्वायरमेंट हो तो माइक्रो। जी, वेरी गुड, 100 मिलीग्राम। ठीक है, और अगर 100 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा की रिक्वायरमेंट हो बॉडी की तो उसको बोलते हैं मैक्रो मिनरल्स। ठीक है, वेरी गुड। जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं उनको ट्रेस एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं आपकी बॉडी को। ठीक है, इन कंपैरिजन टू मैक्रो मिनरल्स जो कि लार्ज क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं आप। ठीक है, 100 मिलीग्राम याद रखना आपने। ठीक है जी, उससे कम चाहिए तो माइक्रो हैं, और अगर उससे ज्यादा की मिकदार में चाहिए आपकी बॉडी को तो रोजमर्रा की बुनियाद पे, तो उनको आप मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। मैक्रो मिनरल्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर एंड क्लोराइड। ये सारे के सारे मिनरल्स वो हैं जो कि 100 मिलीग्राम पर डे से ज्यादा की मिकदार में आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स या माइक्रो मिनरल्स की बात करें तो आयोडीन, फ्लोराइड, सॉरी, आयरन, सेलेनियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, मैंगनीज एंड क्रोमियम। ठीक है, जनरलाइज फंक्शंस एज फार एज न्यूट्रिशन इज कंसर्न, क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ एंजाइम सिस्टम्स। ठीक है, regulate the musculoskeletal functions, responsible for nervous system transmission. They facilitate blood clotting and they ensure the normal cardiac rhythm.
ठीक है। फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं कैल्शियम की, फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं सोडियम की, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके आपके हार्ट की पंपिंग एक्शन के लिए, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए बड़ा रोल होता है इनका, ठीक है। कैल्शियम मसल्स में से निकलता है, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। वो ये सारा का सारा, ये सारे के सारे फंक्शंस अगर आपसे जनरलाइज पूछे जाए एज अ होल, मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन में, तो आप आंसर ये करेंगे जी वो एंजाइम सिस्टम्स को भी करते हैं, मस्कुलोस्केलेटल फंक्शंस को भी परफॉर्म कराते हैं, नर्वस सिस्टम ट्रांसमिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, और इंश्योर करते हैं कि आपका कार्डियक रिदम नॉर्मल फ्लो में चल रहा है कि नहीं, ठीक है जी। देन कम्स इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर उनको स्पेसिफाई किया जाए तो सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आर द चीफ वंस। फंक्शंस क्या हो सकते हैं इनके? रेगुलेशन ऑफ ब्लड ऑस्मोलैलिटी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, रेगुलेशन ऑफ एंजाइमेटिक फंक्शंस, रीनल फंक्शन एंड कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, ठीक है। सो ये सारे के सारे फंक्शंस जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, दे आर समहाउ डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। हर इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंट लेवल होता है, सोडियम का डिफरेंट होगा, पोटेशियम का डिफरेंट होगा, क्लोराइड का डिफरेंट होगा, ठीक है। 97 से 107 जो मुझे याद पड़ता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 95 से 107 इज क्लोराइड, सोडियम फॉल समवेयर अराउंड 140 के आसपास, ठीक है, और पोटेशियम इज समवेयर अराउंड 3.5 से 5, ठीक है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी, आपको क्या याद पड़ता है? इनका टेस्ट है आपका 2 दिन के बाद। जी, कैन यू रिकॉल द नॉर्मल लेवल्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इनके याद होने चाहिए। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द सिलीनियम, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द क्रोमियम, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जगह जगह देखने में, सुनने में, पढ़ने में आते हैं, ठीक है। और आपकी मेडिकेशंस, आपकी डिजीजेस के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस इसके इर्द गिर्द, तो इनका तो लाजमी पता होना चाहिए। जी, सोडियम लेवल कितना है नॉर्मल? सर्च करो, जल्दी से बताओ मुझे, रेंज में बताना है आपने। 140 के इर्द गिर्द में आता है मेरे ख्याल से, मिली इक्वल्स। जी, नहीं 1500 मिलीग्राम नहीं है, ये क्या बताया? 135 से 145 मिली इक्वल्स, ठीक है। तो इसका मतलब सही, आई वाज राइट, 140 मिली इक्वल्स पर लीटर अगर आप एवरेज निकालें उसकी। तो पोटेशियम की बात करें तो कितना होता है? ये लेस नंबर्स में होता है पोटेशियम, समवेयर अराउंड 3.55 से 5 तक, ऐसा कुछ, 3.4, ओके, 3.6 से लेके 5.2, ठीक है जी, ठीक है। और क्लोराइड की बात करें तो? जी जी, अगर क्लोराइड की बात करें तो 97 से 107, ठीक है, वेरी गुड। इसको नहीं भूलना। पता है किस मैं क्यों ये याद करवा रहा हूँ आपको इस टाइम के ऊपर? हो सकता है आपको कोई ऐसा एमसीक्यू या एससीक्यू आ जाए जिसके अंदर सोडियम कंसंट्रेशन दी हो 128, 120, अगर नॉर्मल नहीं पता होगा तो किस तरह पता लगेगा हाइपोनेट्रीमिया है या नॉर्मल लेवल है, ठीक है। इनडायरेक्ट भी पूछ लेते होते हैं, कई दफा तो टर्म बता देते हैं कि जी ब्लड एग्जामिनेशन, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाई उसकी और उसके अंदर हाइपोनेट्रीमिया आ गया या हाइपरनेट्रीमिया आ गया। कई दफा ऐसे नहीं, वो कई दफा ये भी इस तरह भी पूछ लेते होते हैं, वो आपको डबल जज कर रहे होते हैं, डबल टेस्ट कर रहे होते हैं। एक तो आप पहले नॉर्मल वैल्यू आपके जहन में होनी चाहिए, वो नॉर्मल वैल्यू मेंशन करते हैं उसके अंदर, और वो इस तरह भी लिखा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर कि जी सीरम सोडियम कंसंट्रेशन वाज 152, तो यू शुड बी नोइंग दैट थिंग वेरी क्लियरली कि 152 इज नॉट नॉर्मल। नॉर्मल अगर हम बात कर रहे हैं 135 से 145, तो इसका मतलब ही इज इन अ स्टेट ऑफ हाइपरनेट्रीमिया। पोटेशियम किसी का अगर आपको लिख के बता दिया जाता है कि 7 है, 6.5 है, और इसके आप कौन सी कंडीशन है बताएं और इसके आगे मैनिफेस्टेशंस बताएं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि हाइपरकलीमिया, और हाइपरकलीमिया के आपने साइन सिम्टम्स लिखने हैं, ठीक है। क्लोराइड लाइकवाइज बताया जा सकता है, ठीक है, कम ज़्यादा, ठीक है। सो आपको ये इस वजह से ये जो जो मेजर है इनके आपको ये वैल्यूज का पता होना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शंस हैं जी, हमने इसको वी हैड अ रीड हियर, ठीक है। ये अगर इनसे रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चंस आने वाले जीटी में पूछे जाएं, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये सिंगल लाइनर्स, बहुत डिटेल बताने की जरूरत ही नहीं,
ठीक है, ये 4 5 6 फंक्शंस जो हैं ये आप बता देंगे। ओके जी, कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ डाइटरी सोर्सेज के ऊपर नजर डालते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, फिर आ गई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है, हर जगह पे ही पाई जाती हैं। लीफी वेजिटेबल्स की सिग्निफिकेंस देख लें कितनी ज्यादा है। वैसे आप नहीं पसंद करते खाने में, ठीक है, अक्सर लोग नहीं पसंद करते वेजिटेबल्स को इतना ज्यादा। ठीक है, हमारे यहाँ इस रीजन के अंदर मीट लवर ज्यादा होते हैं। ठीक है, बट वेजिटेबल्स अगर बनाई गई हैं नेचर में तो उनके फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। तो स्टार्ट कंज्यूमिंग देम इन योर डेली बेसिस और अपनी डाइट का उसको हिस्सा बनाएं ताकि आप किसी भी मिनरल और किसी भी विटामिन के अंदर डेफिशिएंट ना हो। इसी तरह आगे भी मशवरा दें लोगों को। फंक्शंस की बात करेंगे तो इफेक्ट्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल फंक्शन। ठीक है, कार्डियक कंट्रैक्शन, ये आपकी मसलर कंट्रैक्शन, जो स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन है, कार्डियक मसल की कंट्रैक्शन है, इट इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन कैल्शियम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, इन 2 3 जगहों के ऊपर इसका काम होता है। एंजाइमेटिक को फैक्टर भी आपको जगह जगह पे नजर आता है। डिफरेंट एंजाइम्स की हेल्प कर रहा होता है उनकी ऑप्टिमम एक्टिविटी परफॉर्म करने के अंदर। ऑस्टियोपोरोसिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ पार्ट ऑफ योर न्यूट्रिशन। ठीक है, आपको बेसिकली न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब असेसमेंट बनानी होती है तो आपको जरूर ये चीज रूल आउट करनी होती है कि इसको किसी ऐसी मिनरल की या विटामिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ऑस्टियोपोरोसिस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। हमने विटामिन डी की बात की थी तो उसमें रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया की टर्म आई थी जो कि स्पेसिफिकली है। ऑब्वियसली कैल्शियम मेटाबॉलिज्म विल बी ऑल्टर्ड। द मेन कॉज इज विटामिन डी डेफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ रिकेट्स एंड मलेशिया। बच्चों में रिकेट्स एंड बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। मगर हम जब ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं तो फिर हम बात करते हैं कैल्शियम की। ठीक है, इसके अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन नॉर्मल कंसंट्रेशन से रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, आई थिंक इसको भी रिवाइज करेंगे। कैल्शियम की नॉर्मल कितनी होती है? समवेयर अराउंड 8 to 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 8 to 10, 9 to 11, okay, I was like one number short। 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। ठीक है, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट लिखी होती है मगर यूजली 10 से ऊपर नहीं जानी चाहिए यूजली, और 8 से नीचे नहीं आनी चाहिए, फिर मैनिफेस्टेशंस आना शुरू होती हैं। ठीक है, अगर 8.6 या 9 के कहा जा रहा है तो हो सकता है 8 तक मैनिफेस्टेशंस नहीं आएंगी। 8 से नीचे हो जाएगा अगर, तो फिर मैनिफेस्टेशंस ऑस्टियोपोरोसिस या इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ठीक है जी, ऑस्टियोपोरोसिस होती क्या है? इट इज बेसिकली अ बोन वीकनिंग डिजीज। जाहिर है कैल्शियम आपका कम हो जाता है, डीमिनरलाइजेशन शुरू हो जाती है, बोन वीक हो जाती है। ठीक है, 1 in 4 वुमेन ओवर द एज ऑफ 60। ठीक है, तो इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर 100 में से 25 और 1000 में से 250 लोगों को हो रहा है तो हर चौथे पेशेंट फीमेल को ओवर द एज ऑफ 60 ईयर्स आप डील करेंगे। इसका मतलब आपको इसके बारे में फुल नो हाउ होनी चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। पीक बोन मास जो होता है वो आपका यूजली 25 से 35 ईयर्स की एज तक पीक बोन मास होता है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद बोन लॉस शुरू होती है स्पेशली आफ्टर द एज 40। मीनोपॉज प्लेज अ रोल। ठीक है, जब सेशन ऑफ पीरियड्स होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, उसके बाद बेसिकली एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी और हार्मोन्स इम्बैलेंसेस और ये वो ऑल लीड टू डिक्रीज बोन मास। ठीक है, और प्रिवेंशन अगर आप बात करें, एडिक्वेट कैल्शियम इनटेक एडवाइजेबल होती है हर उस पेशेंट को। हर पेशेंट तो नहीं कहेंगे जब तक ऑस्टियोपोरोसिस नहीं डेवलप हुई, हर उस इंसान को जो कि ओल्ड एज की तरफ प्रोग्रेस कर रहा होता है। ठीक है, और स्पेशली इन फीमेल्स जिनके अंदर मीनोपॉज का एलिमेंट आ जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंसेस शुरू हो जाते हैं। बोन हेल्थ और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में ये एक डायग्राम देख लें। ठीक है, बोन हेल्थ कौन कौन सी चीजों की वजह से ज्यादा प्रोन होती है कि उसके अंदर ऑल्ट्रेशन आ सकती है, खराब हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है इन अ नेगेटिव वे। मीनोपॉज और रिमूवल ऑफ ओवरीज। ठीक है, लॉस ऑफ ईस्ट्रोजन, बोन हेल्थ विल बी इफेक्टेड। एज ओवर द 50 बोन हेल्थ के लिए ये फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, अगर किसी की
आपकी फैमिली के अंदर पहले माँ बाप में से दादा दादी या चाचा जो भी आपके बड़े रिश्तेदार हैं जो बड़ी एज के अंदर फॉल करते हैं, उसके अंदर अगर कोई ऑस्टियोपोरोसिस की फैमिली हिस्ट्री है तो आपको फिर आपके कान खड़े होने चाहिए और आपको प्रिकॉशंस लेनी है, आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेनी है, ठीक है। देयर इज मोर टेंडेंसी ऑफ दोज इंडिविजुअल्स जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। फिर ऐसे लोगों को फिक्र करने की जरूरत है जो कि फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, बैठना ज्यादा पसंद होता है उनको, चलना फिरना इतना पसंद नहीं होता, ठीक है। तो उनके अंदर भी बोन हेल्थ इफेक्ट हो सकती है। लो कैल्शियम डाइट जो कंज्यूम करते हैं रोजमर्रा की बुनियाद के ऊपर, उनके अंदर बोन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। दैट कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस इन अ पर्टिकुलर एज आफ्टर 50, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कुछ ऐसी डिजीजेस हैं फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं सच एज अस्थमा, सीओपीडी, फिर आपके क्रॉनिक बोन डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, डिजीजेस हैं जिसके अंदर आपके फॉर एग्जांपल किसी के जॉइंट के प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर पेन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, आर्थराइटिस की कंडीशन हुई हुई है, उनके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए बगैर पेशेंट को आराम नहीं आता, ठीक है। तो अगर एक्सटेंसिव यूज किसी को हो गया है आर्थराइटिस, अनलेस वो अपना जॉइंट चेंज करवाए उसको आर्थराइटिस रहेगा, राइट, तो फिर उसको वो पेन से बचने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। समबडी इज बोर्न विद द प्रॉब्लम एस्थमा, लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड्स उसको अक्सर औकात उसको ऑन एंड ऑफ लेने पड़ते हैं, खासतौर पर जब मौसम चेंज होता है। तो ऐसे लोगों के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बेसिकली इफेक्ट करते हैं आपकी बोन के ऊपर, ठीक है, एंड दैट इज आवर कॉजेटिव या रिस्क फैक्टर फॉर और डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस। स्मॉल फ्रेम जिन लोगों का होता है, जिनका स्मॉल फ्रेम होता है, उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस चांसेस ज्यादा होते हैं। वाइट और एशियंस, हमारे यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन है। हेवी ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग आर द टू फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स, जो कि काफी और ढेर सारी डिजीजेस के अंदर भी अपना रोल प्ले करते हैं। वो ऑस्टियोपोरोसिस को भी प्रोसेस को भी इनहांस कर सकते हैं, आपकी बोन हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जिनका आपको पता होना चाहिए। ये आपको हिस्ट्री जब लेते हो पेशेंट की, जब क्लिनिकल में जाओगे आगे थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स, उसके अंदर आपको ये पॉइंट्स आपको पूछने पड़ेंगे टू रूल आउट या टू मैनेज द केस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करते हैं। डिक्रीज आयरन, लो अमाउंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन काउंट डिक्रीज होगा, आप उस स्टेट को एनीमिया बोलते हैं। और जब आप उसका एमसीवी करवाएंगे या आयरन लेवल्स करवाएंगे तो वो आपको डिक्रीज मिलेंगे, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विल बी रूल्ड आउट। सिम्टम्स अगर देखें तो सेंसिटिविटी टू कोल्ड हो जाती है, बहुत एक्सट्रीम टायर्डनेस, फटीग, वीकनेस फील करता है ऐसा पेशेंट, और इसी वीकनेस की वजह से डिप्रेशन में जा सकता है, नींद नहीं आती उसको, एंड देयर इज अ ससेप्टिबिलिटी टू कोल्ड्स एंड इन्फेक्शंस, उसकी इम्यूनिटी भी वीक होती है साथ साथ, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं आप? इनहेंस कर सकते हैं आप कैल्शियम आयरन की एब्जॉर्प्शन को, जो खाने पीने की चीज़ों के अंदर या सप्लीमेंट्स की फॉर्म के अंदर वो आयरन कंज्यूम कर रहा है ऐसा पेशेंट जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो उसको आप एडवाइस करते हैं विटामिन सी की इंटेक बढ़ाने के लिए, बिकॉज विटामिन सी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन या एनहांसेस द आयरन एब्जॉर्प्शन। फ्रूट्स का पता होना चाहिए आपको, मोटे मोटे फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं जिनके अंदर आयरन होता है। बीन्स हैं, पीज हैं, अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। सो सारी डेफिशिएंसीज का एक कॉमन इलाज है, ठीक है, या उससे प्रिकॉशन है बचने के लिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। स्टार्ट कंज्यूमिंग सैलेड इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स जो कि लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। एनरिच ग्रेन प्रोडक्ट्स, एग योक दोबारा आ गया, फिश एंड लीन मीट्स, इन सारों के अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है। पोटेशियम की बात करें, इट इज फाउंड इन डेयरी, फ्रूट्स, मीट, फिश, पोल्ट्री, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं आपके ब्लड के अंदर? ठीक है, आपकी एंडोक्राइनोलॉजी जितनी भी है उसके अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर जो हार्मोन्स के एक्शंस हैं और सारा सिलसिला, उसके अंदर एंडोक्राइन फंक्शन इनहांस होता है, डाइजेशन इनहांस होती है आपकी, इंप्रूव होती है बाय कंज्यूमिंग पोटेशियम, और नर्वस सिस्टम के अंदर भी पोटेशियम हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर हार्ट, किडनीज, मसल्स एंड स्किन, ठीक है, ये वाले ऑर्गन्स हैं जो कि पोटेशियम जो इनके फंक्शन को प्रॉपर परफॉर्म करवा रहा होता है। जिंक की बात करें, डाइटरी सोर्सेज हैं फिश, मीट, पोल्ट्री, एग योक, फिर एग योक, ओके, मशरूम, व्हीट जर्म एंड होल ग्रेन। फंक्शंस कार्डियोवास्कुलर मेनली, इम्यून सिस्टम एनहांसमेंट, जॉइंट फंक्शन एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए जिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब इसके अंदर एक मिसिंग है, आई थिंक हेयर के लिए भी जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी स्किन और हेयर के लिए ये अच्छा होता है। ठीक है, सो ये बहुत जो मोटे मोटे सारे थे जो इम्पोर्टेंट मिनरल्स एंड वाइटामिन, उसको हमने थोड़ा सा रिव्यू कर लिया एज फार एज न्यूट्रिशन इज कंसर्न। ठीक है, आपको बहुत डिटेल में तो जाहिर है इंडिपेंडेंट वाइटामिन, अब अपकमिंग जीटी में तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन हैं तो उनके तो इन डिटेल पूछी जाएगी, मगर जब न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन बनाता है तो वो इट वुड बी रादर जनरलाइज क्वेश्चन। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस? जी, ट्रांस फैटी एसिड्स का क्या बताऊं, क्या पूछना है आपने? स्मॉल फ्रेम मीन्स जिनका स्ट्रक्चर छोटा होता है। स्मॉल फ्रेम जिनका कद काट छोटा होता है, थोड़ा सा लेस हाइट। जी जी, आपको एक जर्नल टर्म का पता है ना, पतले होने के फायदे और मोटे होने के फायदे। एक इंटरेस्टिंग आपको चीज बताता हूँ। अ पर्सन हु इज लीन, उसके जॉइंट्स बड़े जबरदस्त रहते हैं, बट बोन डैमेज होने का चांस ज्यादा होता है। अ पर्सन हु इज फैट हैविंग लॉट्स ऑफ फैट पैड्स, ठीक है, और काफी एक्यूमुलेशन होती है, उसकी इसकी वजह से उसका वेट ज्यादा होता है। ये ओबेसिटी में बेसिकली ये मैंने बताना था आपको डिटेल में, और हम उसको डिस्कस करेंगे क्यों बाद में। अब नेक्स्ट आपका आगे ओबेसिटी आ रही है। ठीक है, तो उसके अंदर जॉइंट्स फारिग हो जाते हैं, बिकॉज आपके जो जॉइंट्स होते हैं, आपके नी जॉइंट है या जो वेट बेरिंग जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट है, वो इतना वेट नहीं उठा पाते। ठीक है, मगर आपकी बोन्स जो हैं बड़ी हेल्दी होती हैं, उनकी वैस्कुलैरिटी बड़ी इनहांस्ड होती है, उनको प्रोटेक्शन होती है फैट की एक्स्ट्रा कुशन की वजह से। ठीक है जी जी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ वीए, मेन विजुअल साइकिल लिखेंगे, एक मिनट। वीए बेटा क्या, व्हाट इज वीए? वीए स्टैंड्स फॉर व्हाट? ओके, विटामिन ए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओके यार, मैं ना एक सेकंड ठहरो, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। जिस चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो आप लिपिन कॉर्ड खोलोगे वैसे विटामिन ए के एंड पे वो एक चार्ट बना हुआ है। लेट्स सी, माय टाइम तो नहीं खत्म हो गया, वी हैव 2 मिनट्स। मुझे ये चेंज करना पड़ेगी स्लाइड। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड, मैं आपको ना वो एक वो दिखा रहा हूँ। ओके, आई एम चार्ट। जी, कैन यू सी दिस चार्ट? जी, कैन यू सी दिस चार्ट? ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर आपसे विजुअल साइकिल एज फार एज विजन इज कंसर्न पूछा जाता है तो आपने फिर वो साइकिल बनाना है। ठीक है, वो आपने उसके स्टेप्स ऑफ रिएक्शंस लिखने हैं। अगर जनरलाइज्ड आपसे समरी पूछी जाती है कि डिफरेंट एक्शंस ऑफ रेटिनॉइड्स या विटामिन ए क्या होते हैं, आपको इसको वर्ड्स में लिख देना है। ये चार्ट बहुत जबरदस्त है। ठीक है,
इसमें एज अ एक्शन एज अ थेराप्यूटिक एजेंट्स भी दिया हुआ है, फिर उसके सारे फंक्शंस, ये फंक्शन नंबर 1 रिप्रोडक्शन, फिर मेंटेनेंस ऑफ विजन, प्रमोशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये एक्शंस भी दिए हुए हैं इसके अंदर, और एज अ थेराप्यूटिक एजेंट्स कौन कौन सी चीजें किस किस चीज के लिए यूज होती हैं, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के, राइट डाउन द एक्शन ऑफ रेटिनॉइड्स यूज एज व्हेन यूज एज अ थेराप्यूटिक एजेंट्स। तो उसके अंदर फिर आपने सोरियासिस मेंशन करनी है और उसके नीचे लिखना है कि ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड इज यूज्ड टू ट्रीट सोरियासिस। ठीक है, फिर आपने एक्यूट प्रो माइलोसिटिक ल्यूकीमिया की एग्जांपल, क्योंकि आपकी बुक के अंदर मेंशन हुई भी है, तो आप उसके अंदर ये लिखेंगे ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड या ट्रेटिनोइन फॉर्म जो होती है रेटिनोइड्स की, ये यूज होती है। स्वेयर एक्ने की बात करेंगे तो 13 सिस रेटिनोइक एसिड, इट्स आल्सो एमसीक्यू एज वेल। ठीक है, जी जी, क्या एग्जैक्ट आप इधर अगर लिखते हो लिख दो मुझे। आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, टाइम इज अप। जी जी, मैंने सोरियासिस के बारे में आपको डिटेल में बताया था, मैं आपको नेक्स्ट में दोबारा बता दूंगा। ठीक है, अभी टाइम हमारा खत्म हो गया है, वो फिर नेक्स्ट जो ट्यूटर होता है वो वेट कर में बैठा होता है। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में करते हैं इसको। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।